Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. And today with us is Bharat Rai, amongst my favorite, all-time favorite learner, and a very, very huge potential, not only with regards to civil service examination, but I'm very sure for the country also, actually. I really mean it from the bottom of my heart. And today he's going to represent thousands and lakhs of aspirants amongst you. और आपके behalf पर ये क्वेश्चन पूछेंगे मुझे, and I'm sure it is going to be a huge session and very encouraging and very great session. So I'm also looking forward for it, and उम्मीद है कि आज हमें बहुत अच्छे questions मिलेंगे, and I'll try and address most of them as far as possible. Bharat, welcome to An Academy. Jain sir, thank you for the flattering introduction, and every quality has of course something to do with you sir, and it's not actually just the subjects that you teach us that make us, all of us, admire you, but it's the way you teach us how to live our life and how to live our life actually for the nation. So thank you sir, thank you for all that. Thank you, Bharat. Thank you for being there. Thank you very much. And you being the wisest person I know actually right now, I have some questions which I hope you could answer for me, sir. So I'll try my best. I'll certainly try my best. Please, yeah. So, sir, my first question goes like this: every time in the class to teach us any concept, you actually take the examples of some movies like dialogues and some songs. So I will not actually ask any academic doubts or any academic question here, but I will be asking that what do you suggest to the students who are continuously and rigorously practicing all the time for the UPSC? So what you will suggest to them that उनको movies and all the other activities में कितना ज़्यादा part लेना चाहिए? Like everyone knows that this is very exhaustive process, sir. In this, like someone is preparing for 1 year, someone is preparing for 2 years, and there are some students who are preparing for even 3 years. So this is a very long process. Even if a student reads 6 hours a day, this will be a very exhaustive process. So what do you suggest regarding movies and all the things? Because I have heard somewhere that these movies are getting imprinted in our mind and they leave a thing behind in our mind which does not let us remember all the subjects we have read. So what's your point of view on this? Bharat, I'll be very categorical about it. Yes, I am a movie buff. लेकिन ये मूवीज बहुत सेलेक्टिवली देखनी होती है. ये नॉट ओनली मूवीज फॉर दैट मैटर, म्यूजिक भी, बुक्स भी, कंपनी भी. द एंटायर कॉन्सेप्ट इज दैट इफ यू डोंट हैव डिस्क्रिशन, आपको पता नहीं है क्या करना है, okay? आप हमेशा रॉन्ग चीजें कर लोगे. मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ. सो दिस इज माई एनालॉजी, ओके? सो जस्ट अलाउ मी 30 seconds टू दिस पार्ट, ओके? So मैं 20 years का हूँ, imagine, और मैं 50 years तक या 55 years तक एक कंस्ट्रक्टिव, या 60 years मान लो, 40 साल के लिए मैं एक कंस्ट्रक्टिव प्रोफेशन करने वाला हूँ, ठीक है? अब इस 40 years के पूरे अंतर को, डिस्टेंस को, ओके, कंबाइन इट, ओके, कंप्रेस इट, 40 साल को कंप्रेस इट इन प्रोबेबली इन 1 year, ठीक है? 40 साल को आपने 1 साल में कंप्रेस कर दिया, ओके, प्रोपोर्शनेटली. अब ये मान के चलो कि आपको 40 साल में, मतलब 60 years की जिंदगी तक आपने सारे किले फतेह करने हैं, आपने अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स, अपने दिमाग को जो भी आपने करना है, मुझे नहीं पता, उसको 1 साल में कर लो. उस 1 साल में आप क्या सारा टाइम काम करोगे 40 साल में? नो. क्या सारा टाइम मूवीज देखोगे? नो. क्या सारा टाइम सिर्फ टेबल कुर्सी पे बैठोगे, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करोगे? नहीं. नो. उसको प्रोपोर्शनेटली कम कर दो. इफ यू आर हैविंग अ सक्सेसफुल एटीट्यूड टिल 60th year ऑफ योर लाइफ, और उसको आपने प्रोपोर्शनेटली अपने यूपीएससी में डाल दिया, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 1 साल की तपस्या नहीं है, जेल नहीं है, कोई कारागार नहीं है, कोई सजा नहीं है कि भाई मैंने सिर्फ पढ़ना है. अगर आप 40 साल जिंदगी में अपने आप को सजा नहीं देने वाले, उसमें आप डिवाइड करने वाले हो. मेडिटेशन भी करोगे, घूमोगे भी, फिरोगे भी, दोस्तों भी बनाओगे, मूवीज भी देखोगे. उसमें भी आप चॉइस करोगे कि कौन सी मूवी देखनी है, कौन सी नहीं देखनी है, ओके? वही डिस्क्रिशन यहाँ पर यूज करो इन 1 year. इट्स एज सिंपल एज दैट.
नथिंग चेंजेस राइट। इसको अगर हमने उस नजरिए से देखा, मेरे ख्याल से मुझे उसके आगे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, अपने आप ही आपको ये कंप्रेशन हो जाएगा। सो दैट इज माय पॉइंट। That was really a wise answer, and most of it was a practical answer to say, like every student has to follow this. Yes. So, sir, you also said that not only movies will say this regarding the books, and also my second question is about the books, that many of the students get confused between two things, that some of them वो क्या करते हैं कि they think कि हम books ही books पढ़ें सिर्फ, this will give us a better opportunity to learn more new things, and there are some students जो कहते हैं कि एक ही बुक को मैं 10 बार पढ़ूंगा, so it will make my knowledge consolidated. Both are correct at this point, but the confusion starts from the point that कि books पढ़े तो कितने पढ़ें अगर ज़्यादा पढ़ भी रहे तो, and second कि अगर एक बुक भी कितनी बार ज़्यादा पढ़ें, like 10 बार 20 बार. So regarding this, what you say? But what is a book? मतलब एक 3 Idiots में भी आंसर दिया था आमिर खान साहब ने, मैं वो नहीं मान रहा, so my movie buff starts up. But what is a book? Book is, suppose भरत ने book लिखी, so what is a book? Yes. Book is me, Bharat speaking to me through his writing. I hope yes, sir. that is yes, that is yes, what the long and short of it. अगर हम उसको मुख्तसर से बात करें तो यही वाली बात है कि भरत कुछ बोलना चाहता था, उन्होंने किताब में लिख दी और वो बुक मेरे पास पहुंच गई इन प्रिंटेड फॉर्म। अब भरत कुछ मुझे बोलना चाह रहा है, ओके, और मुझे वो बात समझ में आ गई फ्रॉम द रिटन टेक्स्ट ऑफ द बुक। भाई मेरा काम हो गया बुक का, दैट्स इट, मुझे और नहीं करना, क्योंकि भरत हैड नथिंग एल्स टू से एंड भरत ने वही लिखा जो भरत कहना चाहता था, एंड आई अंडरस्टूड दैट। मेरा उस बुक से अब वास्ता काफी हो गया, जितना मुझे उस बुक से जूस निकालना था निकाल गया। हाँ, जब तक वो पार्ट मुझे नहीं समझ में आया तब तक मुझे 2 बार पढ़ना पड़े, चाहे 10 बार पढ़ना पड़े, चाहे 20 बार, चाहे 100 बार, जब तक मुझे भरत का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तो ऑथर का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, ये बुक का काम खत्म नहीं हुआ। तो आपने व्यर्थ ही उठाई वो बुक। फिर आपने in the first place you should not have picked up that book. I will concentrate on a book not on the basis of that how many times I've read it. I'm not looking at that quantification. I'm looking at quality. Yes, is Bharat, yes, is the communication complete or not? जो आप बोलना चाहते थे, has it completed or not? Yes, sir. So there is Dr. Ambedkar's vision, for example. He says, you know, we the people of India haven't so. We the people. Why did he say we the people? Why did a great man like Dr. Ambedkar say the word we the people? If I understand that and I get a logical, reasonable conclusion to it, I have understood the preamble. Otherwise, keep reading it. So, and इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, find a guru, okay, find a mentor who will tell you कि भाई तू पहुंच गया, you understood. You know, the light is shining. So, just to continue this, and इससे पहले कि ये क्वेश्चन का इतना अच्छा क्वेश्चन का आंसर इनकम्प्लीट रह जाए, इसमें भी ये बात पता है कि इंसान के पास एज अ होल ऑल्सो एंड एज एन एस्पिरेंट के पास तो बहुत ज्यादा लिमिटेशन ऑफ टाइम होता है, तो वो और बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी है, तो बुक्स बहुत कम चूज कीजिए, बहुत कम, ओके, अब वो बहुत कम हर एक की अलग अलग होती है, राइट, तो बहुत कम चूज कीजिए, द सेलेक्टेड द सो कॉल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड्स निकालिए और उनको उस लेवल तक पढ़ लीजिए जहां तक उसको समझने का जरूरत है, नॉट मोर नॉट लेस, दोनों ही बात। 100 बुक्स पढ़ेंगे जिसमें ऑथर और आपके बीच में कोई कनेक्ट नहीं हुआ, नो पॉइंट। एक बुक पढ़ेंगे, ऑथर अच्छा है, ऑथेंटिक है और आपको समझ में आ गया, मुबारक हो, वेलकम टू क्रैकिंग दिस एग्जाम। यस सर। सो रिगार्डिंग दैट देयर इज आल्सो दिस थ्योरी गोस कि आपने जैसे बताया कि बुक इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन, अगर हमको उनके जो लिखना चाहते हैं वो पता चल गया, देन दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर अस, बुक को वापस रख देते हैं। सो द काउंटर पार्ट से दैट कि ऐसा भी होता है कि इफ यू रीड अ बुक एंड यू आर नॉट गेटिंग द कंसेप्ट बिहाइंड द बुक, देन रीड द अदर बुक of the same chapter or the same topic, and maybe you will get a linkage between both the books, and then you will get the concept directly of both the books. Yes.
बिल्कुल सही, This was बिल्कुल सही. yes, yes. So like me also being a book nerd, sir, I also do the same thing that I read continuously many books and try to get a नहीं, conclusion out I of that. absolutely agree with you, भरत. कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं Yes, आसमान नहीं मिलता. ओके, yes, मैं सनसेट मैं फार्म में बैठकर सनसेट देख रहा हूँ तो मैं अंदर की पार्टी, घर के अंदर की पार्टी मिस करूंगा, है ना. वो yes, तो sir. है. आई कैन अंडरस्टैंड दिस. सो कुछ चीजें आपको किसी बुक में मिल जाएगी, कुछ चीजें किसी बुक में मिल जाएगी, बट एक गोल्ड स्टैंडर्ड तो आप रख ही सकते हो. द वन विच इज योर स्टेपल Yes, sir. डाइट. स्टेपल डाइट रो. Yes, बाय चांस उसमें से 10% नहीं मिल रहा, फाइंड इट आउट. वो तो लाइफ का परस्यूट है. दैट्स ओके. yes. So again in the continuation of the last question again, so I want to ask here your answers, like your personal answers, that if you have to suggest to any student, any random student, any 3 books, whether connected with UPSC or connected with the life or anything, so which 3 books will you refer to them to read and why these 3 books? See, अब ये फिर थोड़ा सा रिस्की आंसर हो जाएगा, बिकॉज एज आई सेड, टू ईच हिज ओन होता है. बुक इज अ कम्युनिकेशन. ओके, टू ईच. Yes, sir. But to at the risk of sounding cliche, okay, but there is no bigger book than Mahabharata. Okay, and the second book is Yes, sir. Bhagavad Gita. Okay, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली स्पीकिंग, ऐसा बोलते हैं, मुझे किसी ज्योतिष ने बोला था कि आपका रोहिणी नक्षत्र है इसलिए आपको महाभारत बहुत अच्छी लगती है. मुझे दोनों ही नहीं मालूम है कि रोहिणी नक्षत्र क्यों बोला गया था, तो मुझे ना, बट आई रियली लव Yes. महाभारत. ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन लाइफ में इसको बिना किसी वजह से तो 5th वेद नहीं बोला गया. देयर वाज अ रीजन कि इसको 5वां वेद बोला गया. एंड द सेकंड इज सेवरल इंटरप्रिटेशंस. ओके, बट आई डोंट वांट टू नेम इट, बट एनी ऑफ द इंटरप्रिटेशन चलेगा. और भगवत गीता, ये इस बुक के साथ, इस ग्रंथ के साथ मेरा बड़ा पुराना नाता है. ओके, एज आई वाज वेरी यंग आल्सो, तो मैं बड़ा ब्रैश सिद्धार्थ था. आज तो मैं बड़ा Yes, sir. हो गया, बट तब से इस बुक ने मुझे मदद की. सो दिस इज एंड द थर्ड, बट ऐसे इसका कुछ लेना देना नहीं है फॉर एनीवन. इसमें फिर पॉलिटिकल एंगल ना ढूंढा जाए तो इट इज बेटर है. बट माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ वाज वन बुक जो मैंने पढ़नी स्टार्ट की और मुझे महात्मा गांधी एक अलग ही एंगल में दिखने लग गए. ओके, एंड आई डोंट वांट टू बी साउंडिंग क्लीशे अबाउट इट. जिनको नहीं समझ में आता उनको नहीं समझ में आता, जिनको अच्छे लगते हैं उनको अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. ओके, फॉर वॉट एवर रीजन, एंड माइनस द पॉलिटिक्स ऑफ इट. ये मेरी बुक्स है, मैं फिर ये बोल रहा हूँ, दीस आर माय बुक्स. वेरी फ्रैंकली, मुझे ये 3 बुक्स है. But I love fiction also. I really love fiction of all that part. So these are the so-called non-fiction books, but whatever. So again here मेरी भी frequencies आपसे थोड़ी बहुत मिलती हैं. Not in Mahabharata section, but I read Shiv Puran actually, and moreover all these things say the same things, say the same moral values. Yes. So you in the naming during naming the third book, you said that don't connect it with any political angle or that. So my next question will be this: ki there are some burning hot topics continuously coming in the news and in our Indian premise, which you have to teach in the polity classes, like secularism, socialism, communalism. These things are really the hot burning topics. So how do you manage to put these things in the classes? Like, how do you manage to put these things in classes apart from the political angle, and like being on the safe side and then also teaching the best way of these, like teaching the best definitions of these things? So I was teaching. I've been teaching this for the longest time. So ये अदा मुझे आती है. आई एम अ लॉयर, सो आई नो हाउ टू स्टीयर क्लियर फ्रॉम द सो कॉल्ड कंट्रोवर्शियल थिंग्स ऑन दिस पार्ट. आज सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बोलता भी हूँ क्लास में, भारत, आई होप आप रिकॉल भी करते हो कि मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ, POLITY पढ़ाता हूँ, पॉलिटिक्स नहीं पढ़ाता, POLITICS नहीं पढ़ाता. और जरूरत नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पॉलिटिक्स का कोई एस्पेक्ट है नहीं. बट having said so, मैं दोनों साइड का एस्पेक्ट बता देता हूँ, प्रो एंड एंटी. ओके, एंड आई लीव इट टू माय लर्नर्स कि भाई तुम इनमें से कोई एक एब्जॉर्ब कर लो, okay, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है. इनफैक्ट एज एन एस्पिरेंट, एज अ ब्यूरोक्रेट, तुम्हें दोनों एंगल आने भी चाहिए. ये आज भी नहीं, कल भी तुम्हें काम आएगा. ओके, व्हेन यू बिकम एन IAS IPS ऑफिसर, you are going to be apolitical.
ऐसा बोला जाता है, लेकिन ए Yes, sir. पॉलिटिकल का ऑटोमेटिक मतलब है, उसमें एक पैराडॉक्स है कि आप पॉलिटिकल हो इसलिए पॉलिटिकल होंगे, बिकॉज आपके Yes, ऊपर sir. पॉलिटिकल प्रेशर तो होना ही है। तो और आपके सामने राजनीति होने वाली है, तो ये खेल तो तुम्हारे सामने होता ही रहेगा, तो Yes. आप उससे भाग तो सकते नहीं। सो ये पता होना चाहिए व्हाट आई लर्न राइट वे, कि लाइफ में दोनों एंगल्स मालूम होने चाहिए, एंड देन लेट अस, माय ब्रेन एंड माय माइंड एंड माय इंटेलेक्ट एंड माय सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस उस राइट टाइम पर चूज कर लेंगे। जो प्रॉब्लम है अज्ञानता, प्रॉब्लम है कि आपको मालूम ही ना हो कि इसका Yes, sir. दूसरा एंगल भी कुछ और है। जैसे अभी Yes, sir. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन आया है विच इज रिगार्डिंग सेडिशन लॉ, और अगर आपको Yes, आपकी sir. मेरी क्लास याद है तो मैं खुद ही इसको इस तरह से घुमा के बोलता था, Yes, sir. ओके, और मैं फिर बोलता था देखो दिस इज एन अनफिनिश्ड वर्क ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन मैं कुछ अपना इमोशन नहीं बताता था, Yes, लेकिन sir. कुछ तो गड़बड़ है इसमें। आई होप यू रिमेम्बर, मैं इसको आधा घंटा डिस्कस करता Yes, हूँ, sir. Yes, sir. एंड देन आई पुट इट ऑन दैट एंड That's आई लीव section इट टू 124. यू। एग्जैक्टली। सो मैंने ये Yes, sir. बोला भी और नहीं बोला, दैट्स आल्सो एन आर्ट, कि आपने बोला भी नहीं और सुन भी लिया गया। और ये बड़ा जरूरी है आज की डेट में, नॉट ओनली आज की डेट में, वी आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे मेजर बात ये कि हम सबको अपना अपना बोलने का हक है, okay? और Yes, राइट क्या होता है ये किसी को नहीं मालूम, सच क्या है ये अभी किसी को नहीं मालूम। दैट्स अ फन ऑफ डेमोक्रेसी, दैट्स अ मजेदार पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, सो लेट्स yes, sir. एंजॉय इट, दैट्स द पॉइंट। That was actually as expected answer, and I will say this was a best diplomatic answer, that you have put the weight on the students that you have to decide actually, and this is your decision. मालूम है भरत, आई टेल यू समथिंग, ये सच्चाई है, ये हकीकत है कि सच क्या है किसी को समझ में नहीं आया, ओके, देयर इज Yes, नो sir. ट्रूथ। सो आई विल अगेन कोट महात्मा गांधी, ही यूज्ड टू से कि एक ही चीज को, एक ही एस्पेक्ट को समझने के लिए अलग अलग संदर्भों और अलग अलग समय काल में 7 अलग अलग तरीके होते हैं। Yes, A sir. wise man is somebody who understands कि मैं अगर कुछ एस्पेक्ट आप पर थोप देता हूं तो एक्चुअली मैं आपकी चॉइस एज ए ह्यूमन बीइंग, ओके, और आपके इंटेलेक्ट एज ए ह्यूमन बीइंग को इंसल्ट कर देता हूं, ओके। सो दिस इज इट। सो डॉक्टर अंबेडकर से जब पूछा गया था कि आपने सोशलिस्ट वर्ड क्यों नहीं यूज किया, तो वो ग्रेट डॉक्टर अंबेडकर ने बोला कि अगर मैं ये वर्ड सोशलिस्ट डाल दूं, ओके, सो एक तरह से मैं डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द सिटीजंस ऑफ इंडिया पर एक सवालिया निशान उठा देता हूं। उनकी डेमोक्रेसी है, वो चूज करेंगे कौन सी सरकार चूज करनी है, कैपिटलिज्म करना है, सोशलिज्म करना है, कम्युनिज्म, उनकी मर्जी। जब तक ग्रेट डॉक्टर अंबेडकर, हम उनके आगे धूल भी नहीं है, और उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं थे क्योंकि हमारी लिटरेसी रेट कुछ 6-7% थी। वो इतना Yes, sir. ह्यूज मैन हम पर जिम्मेदारी छोड़ सकता है, तो मैं कौन होता हूँ ये फैसला करने वाला कि क्या राइट है क्या रॉन्ग। दैट वे। Yes, sir. So again here I will see free will concept prevailing here. So getting to the next question, sir, actually this is the problem I see even in the classes, and even most of the places the students are facing, that the problem of note making and the PDF collection. Yes. Like in your classes you say that you have to make your proper handwritten notes as many times as you take my class. Yes. There are some educators, even the best of the educators, that they say that I will provide you PDF. Now this creates a dilemma between the students कि वो educator PDF दे रहे हैं तो ये क्यों नहीं दे रहे हैं, and if he is saying to prepare a note, then why not the second educator is saying, is there any difference between both PDF collection or note making? So I want you to clear this thing right now totally, so like ऐसा कि मतलब ये फिर one and the last answer हो जाए कि what is the point of view on, see, एक ना वे ऑफ टीचिंग होता है, I'll tell you this, इसमें सब्जेक्ट के साथ साथ there's a way of teaching. मेरा वे ऑफ टीचिंग इज मोर ऑफ टॉकिंग, ओके, इट्स मोर ऑफ टॉकिंग। देयर इज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, जो अचानक कहीं से कोई भी टॉपिक आ जाता है, ओके, मैं अचानक Yes, बात sir. करते करते आपको कुछ कनेक्शन पे फैक्ट्स ले जाता हूँ, ओके। अब Yes, sir. आप
एक कोई और सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, मुझे तो सब्जेक्ट्स को और कोई आते भी नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग अ सब्जेक्ट, कोई और सब्जेक्ट है जिनका वे ऑफ टीचिंग इज वेरी फॉर्मल, जैसे ब्लैक बोर्ड पर है, ओके, जैसे हम लोग को स्कूल में पढ़ाया जाता था। नाउ इमेजिन एक ब्लैक बोर्ड पर लिखना है, ओके, और मैं तुमको बेरुवारी केस पढ़ा रहा हूँ, या मैं तुमको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, आपको भी मालूम है बीच में पढ़ाते पढ़ाते कोई मूवी की बात बताने लग जाता हूँ, ओके, मैं आपको कोई पोएम सुना देता हूँ, मैं कोई शायरी कर देता हूँ। तो अब आप बताओ मैं इसको बोर्ड पे कैसे लिखूं? ओके, मेरा काम है उस चीज को समझा देना, ओके, और वो रेस्ट ऑफ इट बिकम्स अ मेथड ऑफ जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस पार्ट। There could be another way. अब now imagine, थोड़ी देर के लिए आप imagine करो, I'm just imagining, और जो लोग भी मेरे को सुन रहे हैं थोड़ी देर के लिए imagine करो कि मैं तुम्हारा स्कूल टीचर हूँ, ओके, और मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ओके, आप बोलोगे यार ये क्या लिखेगा बोर्ड पे? You're understanding? My way of teaching is, it's like a mass, it's like a connected mass, it's like a monster coming to you with variety of connection dots, जिसमें एक लाल होगा, पीला होगा, नीला होगा, and ultimately it will make sense to you. इसलिए मैं सब लोगों को बोलता हूँ कमेंट्स भी मत करो, थोड़ी देर के लिए सुन लो, फिर बाद में समझो। एंड नाउ आई थिंक आप लोग, यू आर अमंग्स्ट द बेस्ट अमंग्स्ट अस, आप भी रियलाइज करो, अब आपको कोई भी कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा पॉलिटी का, बिकॉज इट हैज कम टू यू नाउ। लेकिन देयर कुड बी अनदर एजुकेटर जो इसी को स्ट्रक्चर में ABCD सीक्वेंशियल ऑर्डर में कराना चाहता है, तो उनके लिए PDFs वर्क वेरी वेल, ओके। It's not about polity cannot be taught in that way. It is not economics cannot be taught in it. It's not history cannot be taught. एक हिस्ट्री का भी टीचर हो सकता है, वो कहानियों में बता सकता है। My way of teaching is storytelling. This is my way of teaching. So मेरे वे में of storytelling में PDFs कहीं पर स्थान बना ही नहीं सकता। It's like कि मैं आपको शोले की पिक्चर लिखकर दिखा दूं। Yes sir. So again आपने yes sir. शोले की पिक्चर, शोले सबने देखी हुई है। तो दो दोस्त है, एक डाकू के पीछे भाग कर गए, डाकू ने उनमें से एक को मार दिया, फिर दूसरे ने पहले वाले को मार दिया, पिक्चर खत्म। ये ब्लॉकबस्टर तो नहीं हो सकती, ओके, वो एक स्टोरी है, ओके, बाद में समझ में आती है। मैं भी एक स्टोरी की तरफ पढ़ाता हूँ। तो मेरी वे ऑफ टीचिंग PDF का कोई स्थान नहीं। भारत, am I audible? Bharat, there's a problem with the... So again, yes. So sir, as I was saying that you again had put the weight on the students that you have to choose wisely that what is the way of the educator, and then you have to go according to that. Everyone knows, like, this is everyone knows that you are a master strategist, and no one can guide a student better than even you have not only helped them in GS part but also showed them the way to choose an optional, and you yourself is teaching one of the toughest yet interesting subject, that is PSIR. So obviously I'm not going to ask you regarding any strategy on choosing the subjects and the optional. Actually what I want to ask here is that I have seen even my fellow students and my friends preparing for UPSC. उनके साथ होता क्या है कि they start the optional thing, they go by the optional thing, and when they see the actual face of the optional subject, they get back. उनको लगता है कि अरे ये क्या आ गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, यहाँ इतना 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 ज्यादा डीप कैसे चला गया, and then they switch back to another optional, and then the same thing happens in the second optional. Yes. Like I have seen my students that they have been taking PSI from you, and when they, मतलब जब आप एक पॉलिटिकल थिंकर की डिटेल्ड स्टडी करते हो, then they, अरे यार अब मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा ये कैसे क्या बता रहे हैं सर, and then they have come to history optional with me, and then when they to know that there are more than one perspective of getting an answer, and like Alexander भारत में आके जीता नहीं था, हारा था, then they कि अबे ये कैसे हो गया, this is not a correct thing. So I want to ask you like how to solve this problem. नहीं भारत, आपने बिल्कुल, एक्चुअली मेरे को नहीं लगता कि दिस इज द ओनली वन ऑफ एग्जांपल, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स होंगे जिन्होंने कई बार ऑप्शनल चेंज किया होगा एंड ऑल दैट सब। और इसीलिए मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं इंजीनियर बैकग्राउंड से हूँ,
तो भाई मैं तो सर पॉलिटिकल साइंस कैसे लूँ, या फिर ऑपोजिट वाइस वर्सा, यू नो ऑल दैट। तो मैं उनको अपना एग्जांपल देता हूँ, यार मैं भी मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, बट टुडे टच वुड आई एम प्रैक्टिसिंग वेरी वेल इन द टॉप मोस्ट कोर्ट। बात यहाँ पर ये होती है कि आर यू रेडी टू गो थ्रू दैट ड्रिल। तो आई कंप्लीटली फॉरगेट द नेम, आई डोंट नो, ये शायद एंथनी रॉबिन्स का था, किसका था। सो दिस इज द ग्राफ। ये इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो एक्चुअली मैटर करता है ना, उसके लिए होता है। तो इनिशियली हम लोग बहुत जल्दी अचीव करते हैं। चाहे आप जिम में भी जाओगे, आपको पहले 2-3 दिन ऐसे लगेगा कि यार मसल्स बन रहे हैं, थोड़े दिन में हम आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बनने वाले, लेकिन फिर यू हिट द प्लेटो। वो जो प्लेटो होता है ना, वो प्लेटो 1 दिन का हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, 1.5 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, कभी कभी बहुत लंबा भी होता है। जो जिंदगी की जीत है ना, वो उस प्लेटो के पार है, उस प्लेटो के पार है। इसको पहले माइंडसेट में डालना पड़ेगा आपको, ऑप्शनल में, स्पेशली इन ऑप्शनल, बिकॉज जीएस यहां पर हो जाता है। प्लेटो क्रॉस करने का पहले आपको स्टैमिना रखना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल वाले जो सब्जेक्ट्स है, ये एक्सपर्टीज लेवल के, ऑलमोस्ट एक्सपर्टीज लेवल पे आपको आना पड़ेगा। और आपको वो प्लेटो हिट होगा, वो बोरियत आएगी, वो हिट करेगा, वो कंफ्यूजन आनी स्टार्ट होगी, आप सुपरफिशियली नहीं छोड़ सकते। तो माइंडसेट ऐसे बनाओ कि ऑप्शनल चूज करते टाइम इसको मैरिज की तरह सोचो। ओके, इट्स नॉट अ रिलेशनशिप। ओके, ये कोई कॉलेज कैंटीन का रिश्ता नहीं होगा, ये मैरिज होगी। तो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि ऑप्शनल कैसे चूज करना है, तो मैं सबको बोलता हूँ यार शादी कैसे चूज करोगे, शादी का पार्टनर, देयर इज नो राइट करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, आर यू रेडी टू गो थ्रू दैट प्लेटो? ओके, कि यार अचानक जो कल तक सब कुछ ठीक ठाक था, यार यहाँ पे नेचर मैच नहीं करता, यार ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, बट मैं फिर भी आई विल गो थ्रू दिस एंड आई विल मेक दिस रिलेशनशिप इनटू अ सक्सेस। वेरी गुड एनालॉजी, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। बड़ा ऐसे ही होता है, जो शादीशुदा है ना, वो लोग मेरी बात से अचानक इत्तेफाक रख रहे होंगे, हाँ यार इतना इजी नहीं होता। सो द कॉन्टेक्स्ट देयर इज कि ये जो जीएस है ना, वो वन ऑफ रिलेशनशिप माना जा सकता है, कॉलेज का रिश्ता, ठीक है यार, सब अच्छा रहता है। ठीक है, मैरिज में आते हैं बहुत सारे सच्चाइयां सामने आ जाती है, नहीं यार ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं यार के बाद भी क्रॉस करो। सो ऑप्शनल में प्लीज डोंट लुक फॉर एडवेंचर, डोंट लुक फॉर एडवेंचर, यू विल गेट ब्लॉक। थोड़ी देर के बाद आएगा, हर थोड़े टाइम बाद आएगा, ऐसा भी नहीं आएगा, हर थोड़े टाइम बाद ब्लॉक आएगा। तो गेट रेडी फॉर दिस पार्ट। और इसीलिए फर्स्ट थिंग, वेरी फर्स्ट थिंग is you should be deeply interested in the subject and you should have a mentor. अकेले नहीं होगा, ऑप्शनल लिख के ले लो, it's not going to happen, because आप भूल जाओगे, बीच में बोलोगे नहीं यार ज्योग्राफी ले लेते, नहीं यार हिस्ट्री ले लेते, नहीं यार पीएसआई ले लेते। So get a mentor जो तुम्हारा हाथ पकड़ के, जिसने देखा हुआ है, वो बोलेगा बेटा और 4 स्टेप्स चल, निकल जाएगा। You understand? Otherwise अंधेरा लगने लग जाएगा। That is my point. So you're absolutely correct, but very important at this stage. Yes. You have put the best analogy here that it was like a marriage and the mentor is like the father and the mother who are supporting your marriage. That बेटा और कुछ दिन चल ले, उसके बाद और कुछ दिन चल ले, ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। Sir, my next question will be related to your शायरी. Like when you tell a शायरी in the class, it actually teaches us a lot more than a book can teach us. Literally, sir, they had very deep meanings. But my question here is, being an MBBS student, practicing law in the highest apex court of the India Supreme Court, being a top educator at an academy, where did this actually शायरी part came from? Like, what was the zeal, what was the enthusiasm that you have taken this शायरी part in your life? I think initial parts, my father. My father was deeply interested in shairi, and in fact, my father, my chacha also, they were always, they used to write all those shairi. एक ही line को they used to express it in very बड़े style से बोलते थे and all that stuff. तब समझ में नहीं आता था, but gradually then I started finding Mirza Ghalib, and I found out कि ये शायरी नहीं होती. It's not shairi, it's not poems only, it's not romantic only, it's philosophical.
ओके, देयर इज अ वे ऑफ सेइंग शायरी. तो उसमें एक मिसरा होगा, तो सानी मिसरा होगा, उसमें एक राफिया का, मतलब ऑल ऑफ दिस इज देयर इज अ मैसेज गेटिंग अक्रॉस. ओके, एंड अभी भी मैं मतलब इट विल साउंड वेरी स्ट्रेंज समटाइम कि कभी कभी मैं माय ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइम क्या, मेरे को लगता है प्रैक्टिकली 90% मैं आई ओनली रीड मिर्जा गालिब. ओके, एंड आई फाइंड दैट वेरी फिलोसॉफिकल. जो वो बोल रहे हैं वो बहुत फिलोसॉफिकल होता है. ओके, सो जैसे उन्होंने बोला था कि मसाइल तज़फ़्फ़ुफ़, ये तेरा बयां गालिब, हम तुझे वली समझते जो ना तू बादा खार होता. बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है यार ये, मतलब इंसान की एबिलिटी और द पॉइंट है. और मैं कभी कभी आई जस्ट स्पेंड सम टाइम ओनली थिंकिंग, एंड इट इज अ वेरी, इट्स लाइक यू नो रेस्टिंग टू द सोल. वाओ यार, यू नो समथिंग, यू नो हर एक का अलग अलग होता है. किसी को विलियम वर्ड्सवर्थ समझ में आ जाता है, मुझे गालिब साहब ज्यादा समझ में आते हैं. एंड आई रियलाइज कि मेरी लाइफ का शायद, और शायद दुनिया में भी किसी की भी लाइफ का ऐसा शायद ही कोई एस्पेक्ट होता है जिसको गालिब साहब ने या एक अच्छे शायर ने, ओके बहुत सारे मुकम्मल शायर है लेकिन हर एक का अलग अलग कनेक्ट होता है, कि उनको उन्होंने समझाया नहीं. इनफैक्ट मैंने आपको बहुत सारी जगह पे दिखाया जहां मैं पॉलिटी को इससे कनेक्ट किया हुआ. इनफैक्ट हमने बहुत सारी चीजें इससे देखा है. इनफैक्ट ज्यादा नहीं तो 100 कॉन्सेप्ट्स तो हमने एक शायरी के बेसिस पे समझ लिए कि ये समझाए जा सकते हैं. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वे, बिकॉज दिस इज फिलोसफी रिटन इन अ डिफरेंट वे, रिटन इन अ टिपिकली डिफरेंट वे. और लोगों ने इसको शायरी को वो सो कॉल्ड तुकबंदी बना दी. शायरी इज अ कंप्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट, थॉट इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे. तो मैं आज ही मैंने एक बात बोली थी कि हुई मुद्दत की गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता. अभी यही तो इंटरकनेक्शन ऑफ फैक्ट्स है, यू नो दैट्स इट. तो यूं होता तो क्या होता. सो मल्टीपल थॉट्स, बट yes, it is very close to my heart. A very important part of my entertainment is, or entertainment या सुकून जिसे बोला जाता है, सुख is शायरी. So that way. Yes, I think we still have to cover at least 30 or 40 years of journey to reach at your level. Not at all. You are going to be far ahead of me, and I'm very very sure of that. You are very blessed, and I congratulate your parents. कि you given us this country needs people like you. You're at this young age, आप में एक maturity of thought है, which is a very rare thing. आपकी एज में मैं था तो आप मेरा इंटरव्यू ना लेते, बट आप यू नो यू आर रियली, भगवान ने ये खुदा का ही हाथ होता है, ऐसे नहीं होता. यू आर ब्लेस्ड विद. थैंक यू. Thank you for that, sir. But जब आपने ये मेरे एज की बात उठाई दी, so sir, that there is a big problem in our generation, sir. The problem of, you can say, so-called love or friendship. Like recently एक सीरीज भी आई थी एस्पिरेंट्स की, उसमें एक डायलॉग भी था that sacrificing your love, friendship, family and all these things for such a short goal is not worth it, or is not worth. So what's your point, sir, here? Like, what's your point of view that is the love or friendship or family a bigger goal, or the UPSC is a bigger goal? I don't know इसको दो को अलग क्यों माना जाता है. I don't why should this be understood as two different things. मैंने फिर आपको बोला था, मैं it's a very simple analogy. मैं 20 years से लेकर 60 years तक लोगों से मिलूंगा भी, कुछ लोग नाराज भी होंगे, मैं रिश्ते भी बनाऊंगा, रिश्ते तोड़ूंगा भी. एवरीथिंग हैपन. कॉलेज के मेरे दोस्त कुछ रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे. ओके, सबने कॉलेज में बदमाशी की होगी, लेकिन आज आप बदमाशी नहीं करोगे. आज आप यू नो यू लव योर सन, फिर योर सन विल वॉक आउट. ओके, वो अपनी जिंदगी में कुछ करेगा. ये तो लाइफ का कॉन्सेप्ट है. यूपीएससी इज जस्ट अ फेज. ओके, यू नीड नॉट सैक्रिफाइस. देखो अननेसेसरली, भरत मेरा बहुत अच्छा दोस्त बना. ओके, मुझे उससे सारे पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं. आई शुड नॉट लीव यू. ओके, लेकिन हर आता जाता रास्ते में मिल जाए और मैं उसको दोस्त नाम की पदवी दे दूं, ये भी समझदारी नहीं होती ना. That's it. So discretion is a very important part of wisdom. Okay, मना करना, ना बोलना भी बहुत बड़ी ताकत चाहिए होती है, उसमें समझदारी भी चाहिए, नहीं चाहिए. Everything I cannot absorb. So I don't think कि I don't want to name the topper, but दुनिया को मालूम है क्यों. वो जब फर्स्ट आए, जो टॉप किया, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड को उसका क्रेडिट किया.
बड़े फेमस हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के टॉपर। yes, sir. तो वो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप गर्लफ्रेंड होगी तो आप टॉप करोगे, ये जरूरी नहीं। ये तो उनकी किस्मत अच्छी है और उनका भगवान उनको बरकत दे उनके रिश्ते को, कि उनकी गर्लफ्रेंड ने जरूर उनको पॉजिटिव अप्रोच दिया होगा, ओके, जो इसकी वजह से वो इतना हो गया कि शी वाज नेम्ड। मतलब सलाम है उनको, उनके इश्क को सलाम है कि उन्होंने इसको इतनी इज्जत अफजाई की। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग पार्ट। यू डोंट नीड टू सैक्रिफाइस एनीथिंग। ये बड़ा नेगेटिव अप्रोच है कि मेरे को कुछ छोड़कर ही मेरे को कुछ मिलता है। ये कहाँ पर लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, यू कैन, लोग बोलते हैं हमने हेल्थ सैक्रिफाइस की वेल्थ के लिए। अरे बाबा दोनों रख लो, there's nothing wrong. दोनों रख लो, what's wrong about it? अक्षय कुमार बन जाओ, nothing wrong. So you can have both. Yes. I don't think you need to have such kind of. ये बड़े narrow centric approach है, जिन्होंने ना एक्सपीरियंस लिया, ना बुक्स पढ़ी, ना अच्छे लोगों से उनका वास्ता हुआ, ना सत्संग हुआ और ना मेडिटेशन किया। जो ये नैरो सेंट्रिक, इतना इंसान छोटा नहीं होता। हम खुदा की सबसे बड़ी क्रिएशन है, हम सब कुछ लेकर सकते हैं। ऑल आई वांट इज एवरीथिंग, ऐसा बोल। ऑल that's it. By saying that what gives you positivity, उससे प्यार को indirectly you said that at this stage we should love UPSC, we should love the book, and we should love everything which gives point. बिल्कुल। So on the ending note, that this will be the final question. This might be a fun question for you. I hope you won't mind it. So, no, please. As the greatest of our time and even in the greatest in the history, Swami Vivekananda said that you can't learn Vedas if you don't play football. Here by football, he meant any physical activity. So, sir, what did you play in your childhood, like the gilli danda, the cricket, football, or that so classic pittu game, or if anyone, if you can name? So only weightlifting. I did bodybuilding. Physical exercise में I did body. वो मेरे शक्ल सूरत से लग भी रहा होगा. Okay, I did proper amount of bodybuilding. वो सब किया, weights and all that. ऐसे sports हाँ ऐसा थोड़ा बहुत किया, but ऐसा कोई स्कूल लेवल कॉलेज लेवल तक ऐसा कुछ पहुंचा नहीं मैं. Okay, never. But हाँ कॉलेज लेवल से लेकर और अभी भी रिसेंटली तक भी वेट्स आर समथिंग दैट आई ऑलवेज कैरी एंड आई थिंक इट रियली मैटर्स। स्वामी विवेकानंद साहब ने बिल्कुल क्लियरली बोला था, एंड दिस वाज हिज मैसेज टू द यूथ ऑफ द नेशन, दैट्स व्हाट यू आर कोटिंग, आई एम श्योर। तो उन्होंने बोला था कि यू विल लर्न वेदास विद मोर स्टील इन योर मसल्स विद ट्रू फुटबॉल, यू नो, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शक्ति के बिना कोई फायदा नहीं, ये सब टाइम पास है। शक्ति इज द एलिमेंट। फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग रहो, आपकी चाल में अलग होगी, आपकी आवाजें अलग होगी, आपका अंडरस्टैंडिंग अलग होगा। दैट्स व्हाई आपने नोटिस किया होगा, मेरे ख्याल से हर वीडियो में मैंने बोला प्लीज लुक आफ्टर योर हेल्थ, प्लीज बी स्ट्रॉन्ग, प्लीज न्यूट्रिशन खाओ, मेडिटेट। ये सारी चीजें बड़ी जरूरी है, अपने आप उससे मैजिकल रिजल्ट आ जाएगा। मैं सबको बोलता हूँ प्लीज यार, सारा टाइम बैठे रहकर पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, इट वोंट हैपन, दैट डजंट हैपन। और टाइम हर एक के पास एक्चुअली this is the aura around you that matters actually. So sir, this will be all, and really sir, everything was like, every time you teach us in the class, it's like a blessing to us, sir. I will not say anything more about that because I'd like to say one thing, and at the cost of sounding I don't know what, but you've been a very very dedicated student, and आपके माध्यम से मैं उन सब students को thank you बोलना चाहता हूँ who have made me what I am. Okay, so पढ़ाता तो मैं पहले भी था, but आपकी वजह से मुझे मौका मिला to be able to touch your lives, to be able to touch your heart, and if मेरी वजह से 1 inch तुम्हारी life में फर्क पड़ता है, so I think I'm the chosen one, I'm the blessed one. And thank you very much for this. Make India proud. फटाफट अपना career बनाओ. Make your parents proud. Make India proud. India is looking forward to you people becoming successful and the next decision makers of this country. Thank you very much, Bharat. God bless and Jai Hind. Thank you, sir. Thank you, sir. Jai Hind, sir.